everyone, this is our third period here in this chapter, children. Yesterday, that means on Saturday, okay, I taught you about the levels of government and laws and people, okay. Please read out those para, children, and please watch my later video, means on Saturday's video, okay. Now our today's topic is form of government. What it is? Form of government. Forms of government. So what it is given here? Forms of government means कैसी कैसी government होती है और होती थी, like that, okay. See the topic, children. Open at page 208. Forms of government. A government can be different type, such as democracy and monarchy, depending upon who give the government the power to make and enforce laws. Again I repeat the children, this line. The government can be different types, such as democracy, है ना. अभी डेमोक्रेसी सिस्टम जैसा चल रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगी, चिल्ड्रन. एंड मोनार्की सिस्टम, है ना. एट द पास्ट में चलता था मोनार्की सिस्टम. एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन, ओके. So depending upon the government, the power to make and enforce law. So these two type of government, that means democratic type of government and the monarchy type of government, these two types of government can make law and enforce law. How they can make law and enforce law, and what are the difference between these two? Okay, so let's talk about first one, democracy. It is very important, okay. Democracy. See, please look at the para, children. In a democracy, the people of the country hold the real power to run the government. In a democracy, again I repeat the line, children. Please keep your book in front of you. In a democracy, the people of the government, okay, people means us, okay, your father, mother, okay, your grandmothers and all, grandfathers and grandmothers and all, okay. So in a democracy, the people of the country hold the real power, means we are the real power, hold the real power, हमारे हाथों में real power है, clear. To run the government, है ना. गवर्नमेंट को रन करवाने के लिए जो कॉमन पीपल है अपने कंट्री के, उनके पास पावर है. हाउ? लेट्स सी. However, they do not participate directly in the process. मैम, आपने कहा कि पीपल ऑफ द कंट्री पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन पीपल ऑफ द कंट्री तो इतने सारे हैं, तो गवर्नमेंट कैसे बनेंगे, है ना. इतने सारे लोग कैसे गवर्नमेंट हो सकते हैं? तो मैं आपको समझाती हूँ, चिल्ड्रन. सी, however they do not participate directly, so we, that means we, the people of India, do not participate. हम participate directly नहीं करते, है ना. ये नहीं कि एक सिटीजन को लाके खड़ा कर दिया और वो डिसीजन लेगा, नो, है ना. ऐसा नहीं है. सी, so they do not participate directly in the process. Instead they elect their representatives to form the government, okay. हम डायरेक्टली आके डिसीजन नहीं लेते, हम क्या करते हैं? We can give our vote. See what it is given here. Instead they elect their representative, that means we elect our representative. अब अंडरलाइन करो रिप्रेजेंटेटिव को. रिप्रेजेंटेटिव मीन्स क्या होता है? लीडर और पॉलिटिशियन. हम अपने पॉलिटिशियन या लीडर को चुनते हैं. कैसे चुनते हैं? चलो, आप लोगों ने सुना होगा, यू आर इन क्लास 6th. सो क्लास 6th में आप लोगों ने देखा ही होगा कि आपके पापा मम्मी वोट देने जाते हैं, है ना. वोट देने जाते हैं और फिंगर में एक ब्लैक मार्क लेकर आते हैं, देखा होगा ना, जो मिटता नहीं है कई दिन तक. यस, तो वो क्यों जाते हैं? वो अपने सपोज 8-10 लोग हैं, है ना, उनको पॉलिटिशियन बनना है, उनको रिप्रेजेंटेटिव बनना है हमारे इस गोंदिया का, ठीक है. तो क्या होगा? या हमारे इस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव बनना है, तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? उन 4-5 लोगों में से किसी एक के नाम पर
बटन क्लिक करेंगे और वोट देकर आएंगे, जो फिंगर में मार्क होता है, और वो मार्क निकलता नहीं चिल्ड्रन, ऐसा नहीं कि मैंने देकर आया फट से मिटाया और फिर से देने चले गई। ओके, वो मार्क वो डिस्ट्रॉय मतलब हटता नहीं है हमारी फिंगर से। ओके, सो इसमें क्या होता है, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, अपने लीडर को चुनते हैं वोट देकर। अब कैसे चुनते हैं मैम, है ना, ये क्वेश्चन आएगा। सी सपोज 100 पीपल, मैं आपको एग्जांपल 100 पीपल का दे रही हूँ। क्लियर, 100 पीपल है, 100 पीपल्स में से पर्टिकुलर कोई राकेश है, उसको 50% ऑफ वोट चले गए। क्लियर, और 20% किसी उमेश को चले गए, किसी सीता को चले गए, किसी गीता को चले गए, लाइक दैट। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, राकेश को मिले। कोई राकेश नाम का पॉलिटिशियन है, उसको मिले, तो वो बनेगा लीडर, क्योंकि उसके अंडर सबसे ज़्यादा पीपल्स ने वोट दिया है। मतलब उसके नाम के आगे हमने प्रेस बटन दबाया है और उसको वोट दिया है, मीन्स अपना वोट। हम एक सिंगल हैं तो एक सिंगल वोट उसके नाम किया है, मतलब हम चाहते हैं कि वो लीडर बने हमारा। क्लियर चिल्ड्रन, तो इस तरीके से अब वो लीडर बन गया तो क्या बना चिल्ड्रन, वो बने रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव, हमारे लीडर, हमारे एरिया के लीडर। क्लियर, वो होंगे रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर, तो इस तरीके से हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ही होता है कि जब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव मीन्स लीडर अपना वोट दे करके इलेक्ट करते हैं। क्लियर चिल्ड्रन, सी द नेक्स्ट वन। These representatives make law on behalf of the people. The representatives are answerable to the people for their decisions and action. What it is given, it is very very important. Again I read out this line children. See page 208, last two line. These representatives make law. अब representative what मैंने क्या बताया था, लीडर। make law means वो लॉ बना रहे हैं। क्लियर, रिप्रेजेंटेटिव मेक लॉ बनाया उन्होंने, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, हमारी भलाई के लिए, ये नहीं कि अपनी भलाई के लिए, है ना। हमने उनको लीडर चुना, हम सब ने मिलके राकेश पर्टिकुलर पर्सन को चुना एज फॉर द एग्जाम्पल। ओके, अब वो राकेश जो जीत गए, है ना, वो क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे, किसके लिए, फॉर अस, दैट मीन्स फॉर सिटीजन ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के लिए लॉ बनाएंगे, है ना। यानी उस पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लॉ बनाएंगे और हमारे ही बेनिफिट के लिए, हमारे ही लिए वो काम करेंगे। क्यों, क्योंकि हम ही ने उनको इलेक्ट किया है। इलेक्ट मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, हम ही ने उनको चुना है। क्लियर चिल्ड्रन, सो द नेक्स्ट लाइन, the representative are answerable to the people for their decision and action. अब representative फिर से बता रही हूँ, representative means what, leader, are answerable, ठीक है। अब समझ लो, as for the example I told you that हमारे representative ने एक particular law बनाया, ठीक है। वो law peoples को अच्छा नहीं लगा, है ना, जिन्होंने उनको चुना या जिन्होंने उनको नहीं भी चुना, है ना, तो वो तो लीडर बन ही गया सबका, है ना। तो वो लॉ पर्टिकुलर यानी उस पूरे यानी वो जो लॉ बनाया है वो पीपल्स को पसंद नहीं आया, तो उसको आंसर देना पड़ेगा कि उन्होंने ये लॉ क्यों बनाया, ठीक है। किसको आंसर देना पड़ेगा, यस, जिसने उनको चुना, ठीक है, उनको आंसर देना पड़ेगा। हम जाएंगे, सर आपने ये लॉ क्यों बनाया, इससे तो हमको हार्मफुल हो रहा है, आपने क्यों, किस बात को लेकर ये लॉ बनाया, है ना। हम उनसे सवाल करेंगे, क्यों, क्योंकि हम ही ने उनको चुना है, इसलिए हम उनसे सवाल करेंगे और वो आंसर देंगे, उनको आंसर देना ही पड़ेगा। क्लियर, और ऐसा नहीं हुआ, है ना, मतलब वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए लॉ बना रहे हैं और वो जो लॉ बन रहा है तो वो उनके ही प्रॉफिट में आ रहा है, मतलब उनके ही फ़ायदे के लिए हो रहा है, तो क्या हम नेक्स्ट टाइम उनको वोट देंगे, नो, है ना। तो ये होगा, तो 5 इयर्स के लिए जब वो हमारे लीडर बनेंगे चिल्ड्रन, तो वो हमारे लिए ही डिसीज़न लेंगे और कोई डिसीज़न हमें अच्छा नहीं लगा तो उनको आंसर देना पड़ेगा कि उन्होंने ये लॉ क्यों बनाया, और उनका आंसर हमें पसंद आया कि भाई मैंने ये चीज़ देखकर आपके लिए लॉ बनाया
ताकि आपको पर्टिकुलर कुछ चीज़ों में फ़ायदा हो जाए, इसलिए मैंने लॉ बनाया। तो हम खुश हो गए, हाँ हमारे लीडर ने लॉ बनाया तो हमें ये चीज़ों का फ़ायदा होने वाला है ना, तो हम खुश हो गए, है ना। तो हम उस लीडर से, है ना, हैप्पी हो गए। तो हम क्या करेंगे, उस लीडर को दोबारा चुनने की, दोबारा उसको वोट देने की कोशिश करेंगे, उसको जिताने की भी कोशिश करेंगे, है ना। ऐसा होगा कि नहीं, है ना। अब समझ लो, एज फॉर द एग्जाम्पल टीचर का एग्जाम्पल ले लो। चिल्ड्रन, इफ़ आई नाउ टीच वेल, है ना, अगर मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ाऊँगी और आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, तो क्या आप मुझे पसंद करोगे? नो, है ना, पसंद नहीं करोगे। और समझ में आता है, यू कैन लाइक मी, है ना, तो मैं आपकी बिल्कुल डियरेस्ट टीचर बन जाऊंगी अगर आपको पसंद आई तो। और नहीं आई तो आप बोलोगे हाँ कोई और टीचर हो तो अच्छा लगेगा, है ना, लाइक दैट, है ना। या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ ना आए तो आप यही बोलोगे अरे यार कोई और टीचर होगी तो बहुत है, ये मैम ना बहुत सारा बोलती हैं और हमें समझ में नहीं आता, लाइक दैट, है ना। ऐसे टाइप के आप डिसीजन लोगे। तो बिल्कुल वही होता है चिल्ड्रन इलेक्शन प्रोसेस में, कि अगर कोई लीडर चुना जाए और वो हमारे पर्टिकुलर फेवर में डिसीजन लेता है तो ठीक, नहीं तो वो आंसरेबल है ना। आंसरेबल मतलब उसको जवाब देना पड़ेगा। क्लियर। अब आगे क्या बता रहा, सी द रिप्रेजेंटेटिव आर आंसरेबल टू द पीपल फॉर देयर डिसीजंस एंड एक्शन। जो भी एक्शन कर रहा है, जो भी बिल्डिंग्स बना रहा है, मॉन्यूमेंट्स बना रहा है, रोड बना रहा है ना, क्यों बना रहे हो भाई, ये बिल्डिंग क्यों बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, पब्लिक के लिए बना रहे हो कि अपने लिए बना रहे हो, लाइक दैट, है ना। जो भी वो एक्शन करता है ना, वो पब्लिक के लिए ही चाहिए, है ना, पब्लिक खुश होना चाहिए, तो वो आगे 5 ईयर्स के लिए अगर अगेन वो लीडर बनेगा। क्लियर। चलो, ओके। ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ दिस गवर्नमेंट, अब ये रिप्रेजेंटेटिव नेचर गवर्नमेंट का हुआ ना ये पूरा, सो इट इज़ कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, वोट देने से लेकर लीडर बनने तक, फिर लॉ बनाने से लेकर उसको फॉलो करवाने तक और हमें आंसर देने तक, ये सारी चीज़ें का पूरा प्रोसेस का क्या नाम है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, जो अभी चल रही है इट एट प्रेजेंट। क्लियर। चलो, तो आपको ये प्रोसेस समझ में आया कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी दैट मीन्स कॉमन पीपल, दैट मीन्स ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन गिव देयर वोट टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन बी द लीडर ऑफ आर, है ना, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव बनेगा हमारा एंड ही टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ अस। ओके, एंड ही इज आंसरेबल टू अस ऑल्सो, है ना। इफ ही डू एनी टाइप ऑफ वर्क और एनी टाइप ऑफ एक्शन, इफ वी आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन टू दैम, दैट रिप्रेजेंटेटिव ही मस्ट बी आंसरेबल, उसको आंसरेबल होना पड़ेगा। क्लियर। चलो, अब आया ये डेमोक्रेसी मतलब समझ में। अब हमारा इसी में फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में सेकेंड टॉपिक है मोनार्की। ओके, मोनार्की। सी मोनार्की। अब मैम डेमोक्रेसी तो अंडरस्टूड हो गया, है ना, डेमोक्रेसी तो समझ में आ गया। अब मैम ये मोनार्की क्या है? मोनार्की मीन्स एट द पास्ट जब किंग राज किया करते थे, है ना। अब किंग है ना, क्या पीपल के बारे में सोचेंगे? क्या पीपल के लिए आंसरेबल होंगे? हमारी चलती है, हम चलाएंगे, लाइक दैट, है ना। तो ये प्रोसेस जो पहले चलता था राजा महाराजा राजा रानी के समय पे, है ना, बिल्कुल दैट, है ना, यही प्रोसेस को कहा जाता है मोनार्की। व्हाट? मोनार्की। ओके, सो लेट्स रीड अबाउट इट, इज नॉट सो लेंथी। सी, इन अ मोनार्की अ किंग और अ क्वीन मोनार्क होल्ड द पावर टू मेक डिसीजन। किंग राजा और क्वीन, है ना, दोनों, है ना, मेक डिसीजन, दोनों में से कोई एक मोनार्क रहता था, दैट मीन्स हेड। ओके, राजा। मोनार्क होल्ड द पावर टू मेक डिसीजन, है ना, पावर था उनके पास, दे होल्ड द पावर टू मेक डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए उनके पास पावर होता था। क्लियर। एंड एनफोर्स दैम अगेन मैनी टाइम्स आई रिपीट दैट वर्ड, एनफोर्स, लॉ बनाया, एनफोर्स करवाया, लागू करवाया, लोग फॉलो करेंगे। पर्सन्स मस्ट बी, द सिटीजन मस्ट बी फॉलो दोज लॉ, है ना। जैसे राजा है, राजा ने डिसीजन ले लिया ऐसा करना है, तो ऑल द पीपल्स हु आर इन द विलेज और इन द टाउन और वॉट एवर, है ना, दे मस्ट फॉलो दैट
दे मस्ट ओबे द डिसीजन ऑफ द किंग, उनको डिसीजन ऑफ द किंग मतलब किंग के डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर चिल्ड्रन? सी द नेक्स्ट लाइन, द मोनार्क में कंसल्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर। अब मोनार्क, सपोज मैं राजा हूँ, अब समझ लो कोई तुम्हारे सामने तो है ही नहीं, है ना, सपोज आई एम द किंग और अ क्वीन, है ना, सो आई कैन मेक डिसीजन, ओके, और मैं किससे कंसल्ट करूँगी? फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कुछ ही लोग जो मेरे मंत्री शंत्री होंगे, लाइक दैट, है ना, जो मेरे मंत्री होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, उनको पास में लाऊंगी और बोलूँगी ऐसा ऐसा डिसीजन लेना है, ऐसा ऐसा करना है। वो सिर्फ मुंडे हिलाएंगे, लेकिन डिसीजन तो मेरा ही होगा जो उनको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे आगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, है ना, मैं बोलूँगी आप ऐसा करना, आप ऐसा करना, वो सिर्फ यस ओके जी हुजूर, जी आलम पना, लाइक दैट, है ना, ऐसे ही कुछ बोलेंगे ना, है ना, ऐसे ही कुछ बोलेंगे, जी महाराज, महाराज की जय हो, लाइक दैट, ऐसा करके डिसीजन मान लेंगे, एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, तो डिसीजन तो मेरा ही हुआ, बस मैंने आ करके इन लोगों को सुना दिया, लाइक दैट, है ना, इस तरीके से। देखो, the monarch may consult a group of people to discuss matter, however the final decision making power lies with the monarch। final decision तो मेरा ही होगा ना, है ना, मैं बोलूँगी क्लास में आके तुम यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, है ना, ऐसा ठीक रहेगा ना, वैसा ठीक रहेगा, लेकिन चला तो मैं अपनी रही हूँ, लाइक दैट, है ना, बिल्कुल वैसा ही होगा, वैसा ही होता था राजा महाराजाओं के समय पे। ओके, ऑल्सो द मोनार्क डज नॉट स्टैंड अकाउंटेबल टू द पीपल फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शन। अब मैंने कोई भी एक्शन ले लिया, कोई भी डिसीजन ले लिया, बट आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी ऑफ द पीपल। मैं किसी भी पीपल के सवाल का जवाब नहीं दूंगी, बिकॉज आई एम द किंग एंड द क्वीन, लाइक दैट, है ना, मैं मोनार्क हूँ, मैं एकदम हेड हूँ, है ना, जो भी मैंने एक्शन लिया, जो भी लॉ मैंने फॉलो करवाया, कोई भी मुझे आकर नहीं पूछ सकता। लेकिन अभी गवर्नमेंट में ऐसा है क्या? नहीं, नेताओं को अपने सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। तो दीज आर द डिफरेंस ऑफ दीज टू, है ना, ये दोनों में ये डिफरेंस है ना, कि इसमें अपनी चलाई जाती है, इसमें पीपल्स की चलती है इनडायरेक्टली। अगर नहीं चली इसमें पीपल्स की, तो फिर से वो रिप्रेजेंटेटिव चेंज हो जाएगा और दूसरा नेता इलेक्ट हो जाएगा, वो अपने सीट से गया पर्सन, है ना, जिस लीडर को हमने इसमें चुना है, अगर वो हमारे लिए काम नहीं करता तो गया। या राजा महाराजा अपने लिए काम कर देते, है ना, अगर हमने फॉलो नहीं किया तो हम गए, लाइक दैट। सो अब ये पीरियड यहीं खत्म होता है चिल्ड्रन, नेक्स्ट पीरियड में हम मिलेंगे बाद में, और प्लीज़ रीड आउट दिस पैरा। हैव अ गुड डे, बाय बाय माय लविंग चिल्ड्रन, टेक केयर।